Hello learners and welcome to your own channel LIY English Learn It Yourself. If you're a student studying in 9th, 10th, 11th and 12th standard and haven't subscribed to the channel yet, go ahead and subscribe to the channel first because on this channel I'll be coming up with videos explaining the chapters and poems from your textbook. I would also share videos on grammar, writing skills and many more related topics. So subscribe to the channel and hit the bell icon so you get notified whenever a video is released. So without further ado, let's start today's video. The topic of the video today is writing skills question, that is summary writing, which comes for 5 marks in your exam if you're in 9th, 10th, 11th and 12th standard. And if you never got good marks in summary writing, if you are someone who always got maximum 3 and 3.5 marks in this question, then this video is for you. In this video, I will be explaining the ins and outs of summary writing, how to write a perfect summary, the do's and don'ts of summary writing, and finally, 4 easy steps to follow while writing a summary, by which you can write a perfect summary and get yourself maximum marks. Not full marks, maximum marks. Let us be very clear in the beginning itself that you can never get full marks in language subject in writing skills question. We have to accept that. But you can get maximum marks, that is out of 5, you can get 4 and 4.5 marks, which should be our aim. So let us understand and learn how to write a good summary that will give us the perfect maximum marks. Let us first understand what is summarizing. If we have to go by the definition, it means describing things in the fewest possible words, your own words. But if I have to give you one good and easiest example, it's like when you watch a good movie and you shared with your friends. अगर आपने एक अच्छी मूवी देखी और आपके दोस्त को बताई कि आज मैंने बहुत अच्छी मूवी देखी और आपका दोस्त पूछेगा लाइक नॉर्मली दैट ओके व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द मूवी, क्या क्या स्टोरी है, क्या होता है मूवी में. सो यू विल डिस्क्राइब the movie that you watched for 2.5 hours. You will describe or you will narrate the story of that movie in less than 5 minutes. आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे जो मूवी आपने 2-2.5 घंटे में देखी है अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए. आप बहुत कम वक्त में उसे बता दोगे. ऑफ कोर्स स्टोरी बताने के लिए आप जो डिस्क्लेमर, जो सॉन्ग और अननेसेसरी का म्यूजिक, अननेसेसरी का एक्शन, ये सारी चीजें आप स्किप कर दोगे बिकॉज आपको पता है स्टोरी के लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. सो व्हाट यू डिड एग्जैक्टली, आपने क्या किया, आपने समराइज किया. You put forward in front of your friends a summary of that movie. The same is expected from you in this question of summarizing, writing summary in your exam. Exam में आपको यही करना है कि question will come that write a summary on the given passage. There will be a lengthy passage given. एक लेंदी पैसेज दिया रहेगा, आपको उस पैसेज को पढ़ना है, समझना है और उसके ऊपर आपको समरी लिखनी है इन योर ओन वर्ड्स. दैट इज व्हाट समरी इज. लेट अस अंडरस्टैंड फीचर्स ऑफ अ गुड समरी. किस तरह का आपकी समरी होगी, उसमें क्या फीचर्स होंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं. फर्स्ट देयर शुड बी अ लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज. आपके जो आइडियाज है समरी में, जो सेंटेंसेस है, उसमें एक लॉजिकल लिंक और लॉजिकल ऑर्डर दिखाई देना चाहिए. Next, less description and use of exact words. It means like instead of saying that I could not find a single mistake in the essay that you wrote. तुमने जो ऐसे लिखा मैं उसमें एक भी मिस्टेक नहीं ढूंढ पाया. Instead of saying such a big sentence, इतना बड़ा सेंटेंस बोलने की बजाय आप बोल सकते थे that your essay was flawless, कि आपका essay flawless था. So this is called as less description and use of exact words. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द टॉपिक. जो भी टॉपिक से रिलेटेड है उन्हीं इंफॉर्मेशन को और सेंटेंसेस को आपको समरी में लिखना है. जो इतना ज्यादा रिलेटेड और रेलेवेंट नहीं है, यू हैव टू ओमिट. नो रिपीटेशन. जो चीज आपने ऑलरेडी लिख ली है
अपनी समरी में दोबारा आप उसे रिपीट नहीं करोगे. नो एग्जाम्पल. ओमिशन ऑफ कोटेशन एंड प्रोवर्ब. अगर मेन पैसेज में एग्जाम्पल दिए हैं, कोटेशंस दी गई है, प्रोवर्ब्स दिए गए, आपको वो सब ओमिट करना है. अपनी समरी में वो सब इंक्लूड नहीं करना है. One paragraph. This is one important point that sometimes students miss out, that they write a good summary uh, of only 8 to 10 lines, but they divide those lines into two paragraphs or more than one paragraph, which is wrong. By format, if you go, it is wrong. The format of a summary is that it should contain only one paragraph. Next, contains an apt title. Apt means suitable. आपने जो समरी लिखी है, आपको उसके हिसाब से उसको सूट करता हुआ एक टाइटल भी लिखना है. Now sometimes title is given in the main passage in the question. Question में जो पैसेज दिया है, कई बार उसका टाइटल ऑलरेडी दिया होता है, but the summary is written by you in your own words. समरी जो आपने अपने वर्ड्स में लिखी है, उसको आपको अपना टाइटल देना चाहिए. So these are the features of a good summary. Now let us understand the do's. क्या चीज़ है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, आपको समरी लिखते वक्त ध्यान में रखना चाहिए, so that आपकी समरी बहुत अच्छी हो. 1. Read and reread the passage. पैसेज को 1 से 2 बार पढ़ना. Understand the passage fully. कोशिश करना है जब एक पहली बार ही पढ़े तो आपको मेन मैसेज समझ में आ जाए, और फिर सेकेंड बार आप पढ़ो तो आपको पूरी तरह पैसेज समझ में आ जाना चाहिए. मेक अ नोट ऑफ कीवर्ड्स. सेकेंड बारी जब आप पढ़ोगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको लगते हैं कि ये की वर्ड है, की पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपकी समरी में आपको इंक्लूड करने हैं, स्टार्ट अंडरलाइनिंग देम, ताकि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े. सेकेंड टाइम आप जब रीड करोगे आपको इंपॉर्टेंट चीजों को नोट कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है. यूज शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. आपको अपने खुद के सेंटेंसेस बनाना है, शॉर्ट एंड सिंपल, ताकि वो आप जो इंफॉर्मेशन दी गई है पैसेज में अपने वर्ड्स में अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सको. यूज सम कीवर्ड्स. जो अब आपने रीड करते वक्त कीवर्ड्स को अंडरलाइन किए थे, नोट करके रखे थे, उसको आपको यूज करना है अपनी समरी में. अवॉइड टेक्निकल लैंग्वेज. अननेसेसरी का टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को आपको अवॉइड करना है. जितना हो सके आपकी समरी सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए. राइट ऑब्जेक्टिवली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी वजह से बहुत मार्क्स लूज होते हैं और पता भी नहीं होता है कि हमको, क्योंकि इसमें कोई रेड मार्क्स नहीं होता. देयर इज नो मिस्टेक जो एग्जामिनर आपको लिख के बता सके. इतना टाइम नहीं होता है कि डिटेल में लिख के बता सके कि आपकी क्या गलती है, और गलती एक्चुअली ऐसी होती भी नहीं है कि हम सर्कल कर सके. तो क्या मिस्टेक होती है कि स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिवली नहीं लिखते. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? That sometimes students will use words such as I and we unnecessarily. So this is wrong. You don't have to put your own opinion or your own point of view in your summary. आपको अपनी summary में अपना opinion, अपना thoughts, अपना point of view नहीं लिखना है. जो आपको passage में दिया है आपको as it is, सिर्फ आपको objectively facts present करने हैं, अपनी कुछ भी चीजें उसमें नहीं डालनी है. omit details, very important. कि जो अननेसेसरी की डिटेल्स है आपको अवॉइड करनी है, तभी आप जो अपनी समरी है उसको शॉर्ट बना पाओगे. So these are the do's of writing a good summary. Now let us understand the don'ts. What you should not do. क्या चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए. Don't include कुछ भी एक्स्ट्रा अपना नॉलेज या इंफॉर्मेशन उस टॉपिक को लेके इंक्लूड नहीं करना है. कोई पैसेज जिस टॉपिक के ऊपर अगर दिया है एग्जाम में, और आपको जो पैसेज में दिया है उससे बहुत ज़्यादा भी पता है उस टॉपिक के ऊपर, तो आपको वो चीज़ें अपनी समरी में नहीं लिखनी है. जितना पैसेज में इंफॉर्मेशन दी है टॉपिक को लेकर, आपको उसी को रखना है, उसी को शॉर्ट करना है. इनफैक्ट एक्स्ट्रा कुछ भी बाहर का इंक्लूड नहीं करना है. डोंट एक्सक्लूड. जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको नहीं निकालना है. अगर आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को एक्सक्लूड कर दोगे, इंक्लूड नहीं करोगे अपनी समरी में, यू विल गेट लेस मार्क्स. डोंट कॉमेंट. As I told you, you have to write your summary as objectively as you can. Unnecessary का अपना comment और अपना opinion नहीं present करना है. Don't give examples. Examples नहीं लिखने हैं. Don't explain difficult words. कुछ keywords ऐसे हैं आपके passage में, question में, जो आपको लगता है difficult है, you can explain, you can simplify. No need to do that. So these are the don'ts of summarizing. Finally, 4 steps. 4 स्टेप्स जिसको फॉलो करके आप अपनी समरी लिखोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल,
जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आप पहले पैसेज पढ़ोगे क्विकली, जल्दी से, ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए. सेकेंड, रीड इट सेकेंड टाइम एंड अंडरलाइन द कीवर्ड. सेकेंड टाइम जब आप पढ़ोगे उसी वक्त आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको अंडरलाइन कर लेना है. थर्ड, prepare a rough draft referring to the underlined word. Now here I don't mean rough draft by writing. रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर करना मतलब लिख कर नहीं, ऑफ कोर्स ये आप एग्जाम में नहीं कर सकते हो, टाइम भी नहीं होता है. हियर आई मीन टू प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट इन योर माइंड. अपने दिमाग में प्लान कर लेना है कि आपकी समरी में आप क्या चीजें इंक्लूड करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे फिनिश करोगे, किन चीजों को एक्सक्लूड करना है, और कैसे कुछ चीजों को शॉर्ट में सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो. ये सब आप लिखने से पहले प्लान कर ले. एंड लास्ट, समराइज योर paragraph and give a suitable title. So these are the 4 steps that you have to follow along with the do's and don'ts of writing a summary. And I hope next time if you attempt this question, you get maximum marks. So best of luck for your future exam and these questions that you are going to attend. Let us revise once again. What did we learn? We learned that summary is an important writing skill. It is, of course, a shortened version of a passage written in your own words. It contains all the important points. And while writing a summary, we should read, reread, make a note of keywords, and give the apt title. That's it. So that's it for today's video. If you liked it, please give a thumbs up, share and subscribe to the channel. Thank you all.